जिंदा आवाज को सुन भरपूर ताली में पास्टर नरभट्टी साहब को और ज्यादा तालियों के साथ खुदावंद के बंदा को वेलकम करते हैं। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तारीफ करते हैं जिसके लिए हम सब जमा हुए हैं ताकि उसकी इबादत करें, प्रस्तुत करें। अब उसकी आवाज़ के लिए आपको तैयार करें। हम चंद एक बातें आगे बढ़ाएंगे रोज़े के हवाले से। काफ़ी दिनों से हम इसको सीख रहे हैं, अभी और ज़्यादा सीखेंगे। रोज़ा जो लफ्ज़ है बाइबल में बहुत दफ़ा मिलता है। बहुत सारे लोगों ने रोज़ा रखा, उसका टाइम मुख्तलिफ रहा, इसके साथ साथ उसका रिजल्ट भी मुख्तलिफ रहा। क्या हर जगह पर रोजा रखने का रिजल्ट मिला? नहीं मिला, हर जगह पर नहीं मिला। अब सुनिए, गौर से सुनिए, उसी हवाला को दोबारा पढ़ेंगे। ज़करिया के 7वें बाब में 5वीं आयत कि ममलकत के सब लोगों और काहनों से कह कि जब तुमने 5वें और 7वें महीने में 70 बरस तक रोजा रखा और मातम किया तो क्या कभी मेरे लिए, खास मेरे ही लिए रोजा रखा था? आमीन। नबी पर खुदा का कलाम नाज़िल हुआ। चौथी आयत में लिखा है, तब रब्बुल फ़ाई का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ। नबी कहता है कि खुदा का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ। कलाम क्या था? कलाम ये था कि ममलकत के सब लोगों और काहिनों से कह कि जब तुमने 5वें और 7वें महीने में इन 70 बरसों में 5वें और 7वें महीनों में 70 बरस तक रोजा रखा और मातम किया, रोजा रखा और मातम किया, तो क्या कभी मेरे लिए, खास मेरे ही लिए रोजा रखा था? मेरे लिए, खास मेरे ही लिए रोजा रखा था? अब 70 बरस तक, असीरी के ये 70 बरस हैं, कौम 70 बरस तक रोजा रखती रही। 5वें महीने, फिर 7वें महीने, और 7 मातम भी करते रहे। आखिर पर खुदा ने कलाम किया, नबी की मार्फतों से कहा कि कौम को, कौम के सारे लोगों को, ममलकत के सारे लोगों को और काहिनों को भी ये मैसेज दे दे कि खुदा यूं कह रहा है कि जब तुमने 70 बरस तक रोजा रखा और मातम भी किया, अब बताइए कि क्या मेरे लिए, खास मेरे ही लिए रोजा रखा था? जवाब, ये सवाल है। अब खुदा इसका जवाब तलाश करता है। कह दे काहिनों को, ममलकत के सारे लोगों को कि जब तुम रोजा रखते रहे, 70 बरसों तक रोजा रखा और इसके साथ मातम भी किया, क्या मेरे लिए, खास मेरे लिए कोई रोजा रखा था?
یوں لگتا ہے کہ خدا کے لیے کوئی بھی نہیں تھا. یہ جتنے رکھے یہ خدا کے لیے نہیں تھے. اب خدا کے لیے کیسا ہوتا ہے؟ پچھلے میسج میں آپ سن چکے ہیں یسایہ کے حوالے سے. وہاں پر بھی لکھا انہوں نے گھلا کیا ہم نے کس لیے روزے رکھے اور اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو نظر ہی نہیں کرتا, تو خیال میں بھی نہیں لاتا. ہم نے پھر کیوں کیا؟ اگر تو خیال میں بھی نہیں لاتا, اگر تو نظر بھی نہیں کرتا, تو پھر ہم نے اپنی جان کو دکھ کیوں دیا؟ ہم نے اپنے آپ کو کیوں تکلیف دی؟ رزلٹ نہیں ملا. تو خدا نے جواب دیا کہ جو روزہ تم رکھتے تھے وہ میری پسند کا نہیں تھا, وہ میری مرضی کا نہیں تھا, اس لیے تمہاری نہیں سنی گئی. اب یہاں پر بڑی خاص بات ہے جس پر غور کرنا چاہیے. یہ بات سچ ہے کہ روزہ کی عبادت خدا پسند کرتا ہے, لیکن اگر اس کو درست نہ رکھا جائے یا درست نہ کیا جائے تو بیکار جاتا ہے. یسوع مسیح نے اپنے واس میں, پہاڑی واس میں سکھایا دو طرح کے روزے کے بارے میں. ایک تو وہ جو صرف آدمیوں تک پہنچتا ہے اور دوسرا وہ جو خدا تک پہنچتا ہے. آمین. اور خدا کہتا ہے تم اس طرح کا روزہ کیوں نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز عالم بالا پر پہنچے؟ اس طرح کا کیوں نہیں رکھتے؟ اب فرق کیا ہے؟ وہ جو خدا تک پہنچتا ہے وہ کون سا ہے اور جو نہیں پہنچتا وہ کون سا ہے؟ اور اب ہم سیکھیں گے اس سے بھی آگے, روزہ سے بھی آگے کی بات. لوگوں نے, قوم نے اور کئی لوگوں نے, بائبل میں ملتا ہے روزہ کے ساتھ کچھ اور بھی کیا. وہ کیا کیا؟ خاکساری, دکھائی, اپنے اوپر راکھ ڈال کر, نیچے ٹاٹ بچھا کر, اپنے اوپر ٹاٹ اوڑھ کر, اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی شامل کرتے رہے ہیں. ماتم, رونا, ماتم اور رونا بھی. داؤد کہتا ہے میں اس بچے کے لیے روتا رہا, روتا رہا. دانیل کہتا ہے میں ماتم کرتا رہا. اور ٹاٹ اوڑھنے کا بھی یہ سلسلہ اور اپنا پران چوک کرنے کا اور اپنی چادر پھاڑنے کا یہ بھی ہمیں بائبل میں سے ملتا ہے. لیکن بہت جگہ پر ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ سارا کچھ شامل کرنے کے بعد بھی کوئی رزلٹ نہیں ملا, کچھ نہیں ملا. داؤد کے بارے میں جب وہ اپنے بیٹے کے لیے رکھ رہا تھا تو بائبل لکھا ہے وہ روتا اور ماتم کرتا رہا. صرف پیٹ خالی نہیں رکھا, اس کے ساتھ کچھ اور بھی شامل کیا, اور بہت سارے لوگوں نے شامل کیا. اب یہاں ایک اور بات ہوتی ہے. نینوا کے لوگوں نے روزہ رکھا, انہوں نے بھی ساتھ یہ لگایا, ٹاٹ بھی اوڑا, راکھ بھی بچھائی. بادشاہ نے بھی ایسا کیا, اپنے تخت سے اٹھا, پوشاک اتاری, وہاں لکھا ہے, اور ٹاٹ پر بیٹھا. اس نے بھی اس طرح سے کیا, اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی شامل ہے, گلا اور رما. کچھ نہ چکھا, گلا اور رما. ان کی آرمی اور ان کے مویشی بھی بھوکے رہے, کچھ نہیں کھایا, کچھ نہیں کیا.
उनको रिजल्ट मिल गया। अब फर्क क्या है? खुदा ने दाऊद का रोजा नहीं कबूल किया, यशायाह के जो हम हवाला पढ़ते हैं वहां पर नहीं कबूल हो रहा। दाऊद एक बार ज़बूर में कहता है, मैंने इनके लिए रोजे रखे, बीमारियों के लिए, इनकी बीमारियों के लिए रोजे रखे, पर मेरी दुआ मेरे ही सीने में वापस आई। दुआ वापस आई, आगे नहीं बढ़ रही, आलमे बाला पर नहीं जा रही, दुआ वापस आ रही है। अब इसकी वजह तलाश करते हैं, क्यों ऐसा होता है? सब कुछ करने के बावजूद क्यों खुदा नहीं सुनता? दूसरा सामुएल की दूसरी किताब 12वें बाब में 19वीं आयत से पढ़िए। पर जब दाऊद ने अपने मुलाजमों को आपस में फुसफुसाते देखा तो दाऊद समझ गया कि लड़का मर गया। दाऊद समझ गया कि उसका लड़का मर गया है। सो दाऊद ने अपने मुलाजमों से पूछा, क्या लड़का मर गया? फिर दाऊद ने मुलाजमों से यह सवाल किया कि क्या लड़का वाकई मर गया है? तब दाऊद जमीन पर से उठा दाऊद को जवाब दिया उन्होंने कि लड़का मर गया है। तब दाऊद जमीन पर से उठा और गुस्ल करके उसने तेल लगाया, गुस्ल करके उसने तेल लगाया और पोशाक बदली, फिर उसने अपनी पोशाक चेंज की और खुदावंद के घर में जाकर सजदा किया। फिर वो खुदा की हैकल में चला गया, वहां पर जाकर उसने सजदा किया। फिर वो अपने घर आया और उसके हुक्म देने पर उन्होंने उसके आगे रोटी रखी। अपने घर वापस आता है और उसने हुक्म दिया, उसके सामने रोटी रखी गई और उसने खाई। फिर उसने रोटी खाई। तब उसके मुलाजमों ने उससे कहा, ये कैसा काम है जो तूने किया? फिर उसके मुलाजमों ने सवाल किया कि ये जो काम तूने किया ये किस तरह का काम है? जब वो लड़का जीता था तो तूने उसके लिए रोजा रखा और रोता भी रहा, और जब वो लड़का मर गया तो तूने उठकर रोटी खाई। उसने कहा, जब तक वो लड़का जिंदा था मैंने रोजा रखा और मैं रोता रहा, क्योंकि मैंने सोचा क्या जाने खुदा को मुझ पर रहम आ जाए कि वो लड़का जीता रहे। आमीन। इस उम्मीद से रोजा रखा कि शायद खुदा अपना करम करे और ये लड़का बच जाए। उसने इस उम्मीद से रोजा रखा कि लड़का बच जाएगा, लड़का मरेगा नहीं। एक लड़के की जिंदगी के लिए उसने रोजा रखा। अब उसकी सोच है कि रोजा रखने से मसला हल हो सकता है। अब ये तो बहुत सारे लोगों की सोच है। आज कलीसिया में भी यही सोच शामिल है और पाई जाती है, और लोग ये समझते हैं कि रोजा रखने से हर मसला हल हो सकता है, लेकिन नहीं हो सकता। फिर वो लोग जो ये समझते हैं वो यूना के बारे में और उसके जो नैनों पर खुदा ने रहम किया उसके बारे में हवाला देते हैं। अब गौर से सुनिए। दाऊद ने कहा, मैं रोटी खाए बगैर मैं कई दिन तक भूखा रहा, रोजा रखा, रोता रहा, क्या जाने खुदा रहम करे और वो लड़का जीता रहे। लेकिन खुदा ने ऐसा नहीं किया। ना उसका रोजा सुना गया, ना उसका रोना सुना गया। उसकी वजह क्या थी? आप इसको 12वीं आयत से पढ़ें। इसी बात की जी जी। क्योंकि तूने तो छिप कर ये किया, पर क्योंकि मैं तूने तो छिप कर गुनाह किया,
पर मैं सारे इस्राएल के रूबरू दिन दहाड़े ये करूंगा। खुदा कहता है मैं तेरे लिए सारे इसराइल के सामने रूबरू दिन दहाड़े ये बुराई तेरे घर में करूंगा। आगे तब दाऊद ने नातन से कहा, फिर नातन नबी से दाऊद ने ये कहा, मैंने खुदावंद का गुनाह किया। उसने कहा यकीनन मैंने खुदा का गुनाह किया है। नातन ने दाऊद से कहा कि खुदावंद ने भी तेरा गुनाह बख्शा। चूंकि तूने गुनाह किया है और इकरार भी कर लिया है, खुदा ने तेरा गुनाह बख्श दिया है। तू मरेगा नहीं। तू नहीं मरेगा। तो भी चूंकि तूने इस काम से खुदावंद के दुश्मनों को कुफर बकने का बड़ा मौका दिया है। क्योंकि ये काम करके तूने उसके दुश्मनों को, खुदा के दुश्मनों को कुफर बकने का बड़ा मौका दिया है। इसलिए वो लड़का भी जो तुझसे पैदा होगा मर जाएगा। वो लड़का जो तुझसे पैदा होगा वो मर जाएगा। उसकी पैदाइश से पहले ही उसने बता दिया। फिर नातन अपने घर चला गया। और इसके बाद नबी अपने घर चला गया। कलाम क्या था सुनिए जरा। कलाम क्या था कि ये लड़का भी जो तुझसे पैदा होगा मर जाएगा। लड़का, आप तवज्जो नहीं दे रहे, गौर से सुनिए। लड़का, सुनिए गौर से, लड़का मर जाएगा। लड़का मर जाएगा। ये खुदा का कलाम है, नबी की मार्फत पहुंचा है। लड़का भी पैदा नहीं हुआ था, उसके लिए ऐलान हुआ कि लड़का पैदा होगा, लड़का मर जाएगा। अब दाऊद को कलाम भूल चुका है। अब वो रोजे की तरफ बढ़ रहा है और वो सोचता है कि रोजा रखने से मैं इसको बचा लूंगा। याद रखिए, जहां पर खुदा कलाम करता है अपने कलाम के खिलाफ बात नहीं करता और रोजा भी नहीं सुनता। खुदा के सामने जिसकी कदर है वो खुदा का कलाम है। खुदा अपने कलाम की कदर करता है, अपने मुंह के कलाम की जो उसने नबी को दिया उसकी कदर करता है। जब आप रोजा रखते हैं किसी मकसद के लिए, किसी काम के लिए, तो फिर उसमें एक बात जरूर याद रखें कि जो काम मैं खुदा से करवाना चाह रहा हूं, खुदा का कलाम क्या इसके खिलाफ तो नहीं बात करता। जिसके खिलाफ खुदा बात करता है वो काम रोजे के साथ भी नहीं होता। नैनवा के बारे में तो खुदा ने खिलाफ बात की थी कि मैं 40 रोज के बाद इनको बर्बाद कर दूंगा। और आप पढ़ते हैं कि वहां पर लिखे खुदा ने अपने इरादा को बदल लिया। खुदा ने उनको हलाक करने का कहा था लेकिन खुदा ने नहीं किया। इसकी क्या वजह है? चलिए हम कलाम में से पढ़ते हैं, यूना के 30 बाब में। ब्रदर एंड्रयू की एक किताब है, खुदा ने अपना इरादा बदल लिया। किताब की हेडिंग है, लेकिन जब उसको पढ़ें तो फिर वो इस बात को खोलता है। असल में खुदा ने अपना इरादा बदला नहीं था, लोगों ने अपना इरादा बदल लिया था। क्योंकि जिसके उसका कलाम ये था, अगर ये बाज नहीं आएंगे तो फिर इनके साथ ऐसा करूंगा। और खुदा का इरादा यही था कि वो बाज आए, इसीलिए उसने नबी को भेजा था। अगर उसका इरादा यह था कि खामखा वो मारेगा, इनको कत्ल ही कर देगा, तो फिर नबी को भेजने की तो जरूरत नहीं थी। लचक ये थी अगर वो बाज ना आए तो, और उनको सिखाने के लिए, उनको समझाने के लिए उसने अपने बंदा को, नबी को भेजा। जी पढ़ते हैं, 3 बाब है,
8वीं आयत पढ़िए जी। लेकिन इंसान और हिवान टाट से मुलब्बस हों और खुदा के हुजूर गिरफ्तारी करे, बल्कि हर शख्स अपनी बुरी रवश और अपने हाथ के जुल्म से बाज आए। सुनिए, ऐलान ये हुआ इंसान और हवान टाट से मुलब्बस हों। ऐलान ये हुआ इंसान और हवान टाट से मुलब्बस हों। सिर्फ इंसानों ने टाट नहीं पहना था, हवानों ने भी टाट पहना था। मुलब्बस हों, ये ऐलान हुआ और खुदा के हुजूर गिरफ्तारी करें, बल्कि हर शख्स अपनी बुरी रविश और अपने हाथ के काम से बाज, हाथ के जुल्म से, हाथ के जो बुरे काम हैं उनसे बाज आए। आगे क्या लिखा है? शायद खुदा रहम करे, शायद खुदा रहम करे और अपना इरादा बदले, और अपना इरादा बदले, और अपने कहरे शदीद से बाज आए, अपने कहरे शदीद से बाज आए, और हम हलाक ना हों। इस तरह से हम हलाकत से बच जाएं। आगे भी पढ़िए। जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी, जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी, वो अपनी अपनी बुरी रवश से बाज आए, वो अपनी अपनी बुरी रवश से बाज आए, तो वो उस अजाब से जो उसने उन पर नासिल करने को कहा था बाज आया, खुदा बाज आया और उसे नासिल ना किया। और उसे नाजिल ना किया। सुनिए जरा गौर से, एक खास बात पर आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। यहां पर लिखा है, जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी, जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी कि वो अपनी अपनी बुरी रवश से बाज आए, तो वो उस अजाब से जो उसने उन पर नाजिल करने को कहा था बाज आया और उसे नाजिल न किया। जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी, अब बताइए कौन सी वाली हालत देखी? सुनिए, गौर से सुनिए। जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी, खुदा ने उन पर रहम किया, जो अजाब नाज़िल करना चाहता था वो नहीं किया, वो नहीं किया, बल्कि बास आया। जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी, अब इस पर गौर करें, कौन सी वाली हालत देखी? टाट वाली, राख वाली, या उससे टाट वाली नहीं लिखा हुआ, राख वाली भी लिखा, रोजे वाली भी नहीं लिखा। बुरी रवश से बाज आ गए हैं लोग, टाट से बढ़कर और राख से भी बढ़कर, रोजे से भी बढ़कर, रोने से भी बढ़कर, मातम से भी बढ़कर बड़ी बात यह है कि अपनी बुरी रविशों से बाज आ गए। अगर सुनिए, अगर अपनी बुरी रवश से बाज ना आते, बाकी सारे काम हो जाते, रोजा भी होता, टाट भी ओढ़ लेते, हवान भी, इंसान भी, खाक भी डाल लेते, मैं ये दावे से कह सकता हूं कि उनकी नहीं सुनी जानी थी। रोजे से नहीं, खाक से नहीं, खुदा अगर मुतासर होता है तो हमारी जिंदगी की चेंजिंग से, दिल के टूटने से मुतासर होता है। अगर खुदा को मुतासर करना चाहते हैं तो हम अपने ज़ाहरी कामों से मुतासर नहीं कर सकते। खुदा को मुतासर करने के लिए
अपनी बुरी रवश, अपने राहों से चेंज होना, और इससे खुदा खुश हो जाता है। क्योंकि खुदा के कलाम में यूं लिखा है कि खुदा इस वास्ते कि उनकी ये हालत देखी, हालत क्या थी कि वो अपनी बुरी रवशों से बाज आए हैं। यिर्मयाह में 18वें बाब की 11वीं आयत पढ़िए। जल्दी से 2-3 हवाले जल्दी से पढ़ दें। यिर्मयाह 18वें बाब की 11वीं आयत को दूसरा निकाले। यिर्मयाह 26 और 30 आयत। अब तू जाकर यहूदा के लोगों और यरूशलेम की बशिंदों से कह दे कि खुदावंद यूं फरमाता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए मुसीबत तजवीज करता हूं और तुम्हारी मुखालफत में मंसूबा बांधता हूं। खुदा कहता है मैं तुम्हारे लिए मुसीबत तजवीज करता हूं और तुम्हारे खिलाफ एक बुरा मंसूबा बांधता हूं। सो अब तुम में से हर एक अपनी बुरी रवश से बाज आए, हर एक तुम में से अपनी बुरी रवश से बाज आए और अपनी राह और अपने माल को दुरुस्त करे, अपने रास्ते और अपने अमाल को ठीक करे, दुरुस्त करे। पर वो कहेंगे कि ये तो फजूल है, वो समझेंगे कि ये तो फजूल है, क्योंकि हम अपने मंसूबों पर चलेंगे हम अपने मंसूबों पर चलेंगे और हर एक अपने बुरे दिल की सख्ती के मुताबिक अमल करेगा। हर कोई समझता है कि मैं अपनी सख्ती के मुताबिक अमल करूंगा। ये बदलना, ये चेंज होना, ये तो फजूल बात है। आगे खुदा ऐसे नहीं सुनता। फिर 26वें बाब की 3री आयत पढ़िए इसी के। और शायद वो खुदा का कलाम सुने, खुदा की आवाज सुने, और हर एक अपनी बुरी रविश से बाज आए, हर एक अपनी बुरी रविश से बाज आए। और मैं भी उस अजाब को, मैं भी, खुदा कहता है, उस अजाब को जो उनकी बदअमाली के बायस उन पर लाना चाहता हूँ, जो उनकी बदअमाली की वजह से उन पर लाना चाहता था, बाज आऊंगा। खुदा कहता है अगर मैं किसी पर बुरी मंसूबा बनाता हूं तो वो अपनी रवस से बाज आ जाते हैं, तो मैं उनकी सुनता हूं और मैं भी अपने अजाब को नाज़िल करने से बाज आता हूं। 36वें बाब की 30वीं आयत भी पढ़िए। 36वें बाब की 30वीं आयत भी पढ़िए। शायद यहूदा का घराना उस तमाम मुसीबत का हाल जो मैं उन पर लाने का इरादा रखता हूं सुने, ताकि वह सब अपनी बुरी रविश से बाज आएं और मैं उनकी बदकारी और गुनाह माफ करूंगा। माफ कर दूंगा अगर वो अपनी बुरी रविश से बाज आते हैं तो। फिर 7वीं आयत भी पढ़िए इसी की 36वें बाब की 7वीं आयत। शायद वो खुदावंद के हुजूर मिन्नत करें और सब के सब अपनी बुरी रविश से बाज आए, क्योंकि खुदावंद का कहर व गजब जिसका उसने उन लोगों के खिलाफ ऐलान किया है शदीद है। हाँ, अगर वो बाज आए तो खुदा जो उनके खिलाफ ऐलान करता है वो उसको रोक देता है। फिर हिजकियेल 3 बाब की 18वीं आयत और 19वीं आयत। 3 बाब 18वीं 19वीं आयत। जब मैं शरीर से कहूंगा कि तू यकीनन मरेगा, अगर मैं शरीर को कह दूं, ऐलान कर दूं कि यकीनन तू मरेगा, और तू उससे आगाह ना करे, और तू उसे आगाह ना करे, और शरीर से ना कहे कि वो अपनी बुरी रविश से खबरदार हो, उसको ये बात ना कहे, उसको ये ना बताए कि वो इससे बाज आए, ताकि वो उससे बाज आकर अपनी जान बचाए, वो उसको तूने कहना है कि वो बाज आए और अपनी जान बचाए, तो वो शरीर अपनी शरारत में मरेगा। वो अपनी शरारत में मर जाएगा। उससे चूंकि कलाम नहीं मिला, उसके पास कलाम नहीं पहुंचा, इसलिए वो मर जाएगा। लेकिन मैं उसके खून की बाज पुरस तुझसे करूंगा। जिसने
से कलाम रोका है, बहस पुरस उससे करूंगा। आगे, आगे भी, लेकिन अगर तू शरीर को आगाह न करे, अगर तू शरीर को आगाह कर दिया और वो अपनी शरारत और अपनी बुरी रवैश से बाज ना आया, तो वो अपनी बदकारी में मरेगा, पर तूने अपनी जान को बचा वो लिया। मरेगा पर तूने बताया है, इसलिए तूने अपनी जान बचा ली। खुदा कहता है उनके पास कलाम पहुंचा है, लेकिन उन्होंने कबूल नहीं किया, इसलिए जो मंसूबा उनके खिलाफ है मैं उसको पूरा करूंगा। खुदा का कलाम बार बार यही सिखाता है, अगर खुदा इंसान के लिए कोई मंसूबा बनाता है, वो अपनी बुरी रवैश से बाज आता है, तो खुदा उसको बख्श देता है, उसका गुनाह माफ करता है। ये काम रोजे से नहीं होता, रोजे के साथ मुख्तलिफ चीजें करने से नहीं होता, बल्कि अपनी राहें चेंज करने से होता है। खुदा अपने गजब को रोक देता है और अपने मंसूबे को खुदा बंद कर देता है, जहां पर रोजे के साथ अपनी बुरी रवशों को चेंज करने का अमल होता है। आमीन। आमीन। खुदा चाहता है कि वो लोगों पर रहम करे, किसी की हलाकत से खुश नहीं है। हम हर एक चीज का हल रोजा समझते हैं, लेकिन रोजा से ज्यादा अमाल चेंज करना, जिस पर हम गौर नहीं करते। और इस तरह से दाऊद भी समझता था कि वो रोजा रखेगा, मातम करेगा, तो इस तरह से वो अपने बेटे को बचा सकेगा। लेकिन खुदा कहता है कि अगर कोई अपनी रवश से बाज आए तो खुदा उसकी सुनता है, खुदा उसका रोजा भी कबूल करता है। इसलिए खुदा ने कहा 70 बरस तक 5वें और 7वें महीने रोजा रखा, मातम भी करते रहे, टाट भी ओढ़ा, रोते भी रहे, लेकिन सुनी नहीं गई, क्योंकि अपने काम नहीं छोड़े। कामों को क्या कहा? फजूल। उन्होंने फजूल समझा, खुदा के कलाम की बेकदरी की। अगर आप बढ़ना चाहते हैं, खुदा से अपने मुश्किलात का हल चाहते हैं, तो